Okay, boys and girls, now time to solve the exercises. As I have explained the summary and I have explained the passage, now time to you people to solve the exercise. And all the exercise, believe me, it's very easy, very interesting. And if you have understood the lesson, you will enjoy to solve this exercise. So dear boys and girls, let's start with fill in the blanks. Question number 1, fill in the blanks. You have to write in your sheet. The sheet which is given to you, you have to solve all the exercise in the sheet only. Okay. Number 1, a beautiful stag came to a pool of dash water. How you will solve this fill in the blanks? You don't need to learn the fill in the blanks. What you have to do, क्या करना है आपको लेसन पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ के आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है, उसको कंप्लीट करने का. पैसेज में लिखा हुआ है. डोंट नीड टू लर्न लाइक हिस्ट्री, लाइक साइंस. ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है क्या क्या कहा जा रहा है, कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, एंड नीट एंड क्लियर लिखने का. नंबर 2, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग डैश वाटर he kept looking at his own dash. Instead of drinking dash water, he kept looking at his own dash. ठीक है ना. इंस्टेड ऑफ, देखिए ड्रिंकिंग के बाद में कौन सा वर्ड यहाँ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, और कौन सा वर्ड आपको लिखना है. अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी. एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ऑल द एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू ईच अदर. अगर आपने एक एक्टिविटीज कर ली तो आप ट्रू फॉल्स भी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे. अंडरस्टूड? सो नंबर 3, ही वॉज क्वाइट डैश. आप पैसेज पढ़िए, यू विल गेट द आंसर. नंबर 4, दे आर सो डैश. ओके, आपको ये पढ़ना है, चेक करना है कि किस चीज के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है. नंबर 5, आई विश दैट dash had given me dash worthy of my stately antlers. क्या विश करता है वो आपको पता है, आपने पैसेज में पढ़े हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बताया था, समरी में आपको मैंने बताया था. तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस फिल इन द ब्लैंक्स. ओनली आपको क्या करना है, क्लोजली आपको रीड करना है पैसेज, और पैसेज रीड करते इसके साथ साथ आपको इसमें ब्लैंक्स में यू हैव टू राइट इन ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड. Question number 2, true or false. True or false, it's also a very interesting. इससे पता चलता है कि आपको कितना पैसे समझ में आया. The stag was a beautiful animal. The stag was a beautiful animal. Of course, stag is animal, and according to the passage, it was a beautiful animal. तो ये true है या wrong or false, right or wrong? True or false? Definitely, if you have understood the passage, so you will write true. आपको पता चल जाएगा ये true है. Okay, you have to write the answer in the given passage, in the given blank place. Number 2, the water in the pool was very dirty. Oh, now you have must amaze. आपको ताज्जुब होगा, वो पैसेज में तो ऐसा नहीं लिखा है. What is it in the passage? What is written in the passage? The water in the pool was very dirty था या very clear water? कैसा water था, पानी कैसा था, dirty था और clean. ओके, आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो you will be easily writing the answers true or false without any hesitation. Okay, understood. Number 3, the stag saw other stag in the water. Is that so? ऐसा हुआ था क्या? Was there any other stag in the water? पानी में कोई दूसरा stag था क्या? So what he saw? Did he see other stag in the water? आपको पता होना चाहिए कि stag ने पानी में क्या देखा. stag ने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपना साया, अपना शेडो है ना. तो there was no other stag. So ये true या false है? Okay, according to the passage, it is okay. You know that क्या लिखना चाहिए, true लिखना चाहिए, false लिखना चाहिए. Okay, next,
The antlers of stag was looking graceful. Yes, of course, you know that. आपने पढ़ा है ना, उसके antlers उसको कैसे दिखाई दे रहे थे, you know that. Number 5, the feet of stag was small. The feet of stag was small. और okay, up to you, up to know that. पैसेज में लिखा हुआ है. You should solve these very easily and very okay. So dear boys and girls, there were 2 exercises we have solved. Question number 1, filling the blanks we have solved. Question number 2, true or false. आपको क्या करना है, बराबर तो समझने का है और आंसर्स जो आपको जगह दी गई है उसी में लिखने का है. आपको शीट मिली है, आपको शीट में देखकर आंसर्स क्या करना है, शीट में आंसर लिखना है, नॉट इन योर नोटबुक. एंड और लिसन वन मोर थिंग, नीट एंड क्लियर. ओके, ओवर राइटिंग नहीं, without erasing, without deleting, over writing नहीं होना चाहिए. Okay, boys and girls, so I hope you have enjoyed. Let's move forward. Yes, dear boys and girls, question number 3. Put the following statements in their proper occurrence. What you have to do in this exercise, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर there are 5 sentences जो मैंने तरतीब में नहीं लिखा हूं. जिस तरीके से ये सेंटेंस पैसेज में आए हैं मैंने इसको आगे पीछे कर दिया. ठीक है, इसकी सेटिंग मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है. यू हैव टू रीड एंटायर पैसेज, कंप्लीट पैसेज, एंड यू हैव टू सी विच वन इज नंबर 1. ओके, कौन सा सेंटेंस पैसेज में अपीयर फर्स्ट, पहली बार कौन सा सेंटेंस आया, दूसरी बार कौन सा आया. सपोज हाउ ग्रेसफुल दे लुक. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी दिस स्टेटमेंट इन दिस सेंटेंस. और देखिए पूरे पैसेज में ये पहली बार है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम. ठीक है, इस कब अपीयर हुआ है, कब अकर हुआ है. दे आर सो अगली, दे आर सो अगली. देखना, दे आर सो अगली, इट्स फर्स्ट टाइम, ये पहली बार लिखा है, फर्स्ट अपीयर है, सेकंड अपीयर है, थर्ड अपीयर है, कब है ये. ही वॉज डिलाइटेड व्हाट ही सॉ, ही वॉज डिलाइटेड व्हाट ही सॉ, ये भी देखने का है. कहाँ लिखा हुआ है ये, पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में है ना. हाउ हैंडसम आई लुक, चेक इट वेयर इट इज रिटन. इज इट ऑन फर्स्ट लाइन, इज इट ऑन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन. Okay, number 5, he kept looking at his own reflection. He kept looking at his own reflection. So understood कैसे solve करेंगे इसको, how you will solve this exercise. ये बहुत ही easy है, बहुत ही आसान है. आपको क्या देखना है, कौन सा statement, जो 5 statement है इसमें से पहली लाइन में कौन सा है, दूसरी लाइन में कौन सा है. Suppose I am not sure. Suppose अगर ऐसा है कि he was delighted what he saw, अगर ये पैसेज में फर्स्ट या सेकेंड लाइन में, तो आप क्या करोगे, आंसर में इसको नंबर 1 देंगे. नंबर 1 क्या देंगे, he was delighted what he saw. फिर अगर आपको लग रहा है कि how handsome I look, ये अगर सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, तो इसको सेकेंड नंबर दो. अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व, इसको बोलते हैं पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट according to their occurrence. It's very easy. Try it, you will solve it. Question number 4, answer the following question in one sentence only. एक सेंटेंस में आपको जवाब लिखना है, you have to write the answers. और कहाँ लिखने का, जो आपको नीचे स्पेस प्रोवाइड किया गया ना, the space which is provided given, you have to write the neat and clear answer with proper punctuation. What did stag see in the water? What did stag see in the water? क्या देखा उसने, स्टैग ने पानी में क्या देखा. डेफिनेटली आपने पूरी स्टोरी समझे है ना, यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. व्हाट डिड स्टैग सी, तो आपको आंसर लिखना है द स्टैग सॉ. देखो क्वेश्चन में डिड है और सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जब कभी क्वेश्चन में डिड आएगा, तो जब हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, जो भी वर्ब है ना उसका सेकंड फॉर्म कर देंगे. जैसे यहाँ पे सी है तो आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉ कर देंगे. ओके, द स्टैग सॉ इन द वाटर हिज ऑन रिफ्लेक्शन, इजंट इट, वही देखा ना. क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हाट डिड स्टैग डू.
पानी पीने गया था ना, तो पानी पीने के बजाय स्टैग ने क्या करने लगा, क्या किया स्टैग ने? देखिए इसका आंसर कहीं ना कहीं ऊपर लिखा भी हुआ है, पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में समहाउ इसका आंसर लिखा हुआ है, चेक करो। मैंने पहले कहा था, आई हैव टोल्ड यू ऑल द एक्सरसाइजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं लिखा होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर, और कहीं नहीं तो यू विल गेट द आंसर इन द पैसेज। ओके, तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हाट डिड स्टैग डू? पानी पीने के बजाय क्या करने लगा? यू नो दैट ऑल, है ना। कीप लुकिंग इज ऑन रिफ्लेक्शन। वेयर डिड ही सी हिज लेग्स रिफ्लेक्शन? अपने पैर का रिफ्लेक्शन कहाँ देखा? आसमान में देखा? नहीं ना। ओके, यू नो दैट वेयर ही सो। व्हाट डिड स्टैग विश फॉर? उसने किस चीज की दुआ मांगी, किस चीज की तमन्ना की? यू नो दैट। वेयर डिड अ ब्यूटीफुल स्टैग कम? वेयर डिड अ ब्यूटीफुल स्टैग कम? किधर आया वो? पानी पीने के लिए कहाँ गया था? Okay, you all know that. Okay, it's very easy, very interesting. I hope you have enjoyed. Now let's we move in the question. Hello. Now, dear boys and girls, we will solve the question number 5. It's very interesting, very easy. Because when I was explaining, I have told the opposite. I have declared the opposite. So find out the opposite of beautiful and disgusted from the passage only. Passage में से ही beautiful का और disgusted का opposite ढूंढना है। beautiful इसका opposite क्या है आपको passage में मिल जाएगा, मैंने explain करते वक्त समझाया था। और disgusted का opposite also it is in the passage, ये भी passage के अंदर ही है। When I was explaining, मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर दिया था, दोनों का अपोजिट आपको पैसेज में से ही ढूंढना है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द एडजेक्टिव, फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ स्टैग एंड वाटर फ्रॉम द पैसेज ओनली। फाइंड आउट द एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को और क्लियरली बताता है। जैसे क्लेवर बॉय, स्मार्ट गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय, है ना, लवली गार्डन। तो क्लेवर ये बॉय को डिक्लेयर कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। सो एडजेक्टिव कहते हैं ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या करे और बताए, नाउन के बारे में उसकी अच्छाई बुराई बताए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टैग एंड वाटर दोनों के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव को। आपको पैसेज में से ही देखने का, वेरी इजी, आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, आई होप। Put proper articles in the following statement, following sentence. Following sentence के आगे आपको proper article लिखना है। It's also very easy. Articles a, an और the. A, an और the होता है, ठीक है। Okay, a, an और the ये articles होते हैं, understood? तो जो noun consonant से शुरू हो रहे उसके पहले क्या आएगा, ठीक है, a आएगा। और जो नाउन वॉवेल से शुरू हो रहे उसके पहले क्या आएगा, एन आएगा, अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। वन डे डैश ब्यूटीफुल स्टैग केम टू डैश पूल ऑफ क्लियर वाटर। इसके पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, अप टू यू, चेक इट प्रॉपरली। ओके, नंबर 2, बी, ही सो हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन डैश वाटर, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आर्टिकल लिखोगे। नाउ find the smaller words hidden in the following words. Reflection, delighted, graceful, ये ऐसे वर्ड है जिसके अंदर भी और स्मॉलर वर्ड्स छुपे हुए हैं। What you have to do, आपको वो स्मॉलर वर्ड्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसके अंदर से ढूंढना है। ओके, जैसे रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में कौन कौन से स्मॉलर वर्ड्स बन सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं ना, आपको वहां से ढूंढ के निकालना है। डिलाइटेड, ग्रेसफुल, तो स्मॉलर वर्ड्स दो वर्ड्स के, 3 लेटर के, 4 लेटर के, 5 लेटर के, जितने भी आप ढूंढ के लिख सकते हो। आपको नीचे प्लेस इज गिवन, वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट करेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल वर्ड सेलेक्ट करना है। अकरेंस, सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है ना, वो आपको क्या करने का है, लिखने का है, जो जगह दी गई है। जैसे ब्यूटीफुल है, फिर सी में रिफ्लेक्शन है, चेक करो प्रॉपर, आप लोग इजीली ढूंढ के लिख सकते हैं, अंडरस्टूड ना। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प यू ओनली इफ यू हैव लर्न दी स्पेलिंग। स्पेलिंग आपने लर्न कर लिए हैं तो आपको पैसेज में देखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सी इन द पैसेज, अपने ऑन स्पेलिंग, है ना,
से आप क्या करो, करेक्ट स्पेलिंग हो। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द पैसेज अगेन एंड सर्च फॉर एन इंसेक्ट विच इज मोस्टली फाउंड इन आवर हाउस। पैसेज में ऐसा वर्ड है ना जिसके अंदर एक इंसेक्ट छुपा हुआ है। पैसेज में एक वर्ड है ना, वो इंसेक्ट ऐसा है जो अपने हर जगह पाया जाता है, घर में पाया जाता है। वो इंसेक्ट आपको पैसेज में एक वर्ड्स के अंदर मिलेगा, ढूंढो एंड फाइंड आउट वेयर इंक इज रिटन। इंक किधर लिखा हुआ है, इंक, INK, इंक। पैसेज में ऐसा वर्ड है जिसमें इंक लिखा हुआ है। और क्या है, एंड लुक फॉर दी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना, एंड सी इफ किंग इज हिडन इन दी गिवन पैसेज। पार्ट्स ऑफ बॉडी भी अपनों को पैसेज में लिखा हुआ मिलेगा और किंग भी कहीं पैसेज में छुपा हुआ है। तो आपको क्या करने का है, पैसेज के अंदर देखने का है, एक ऐसा इंसेक्ट है वो अपने कॉमनली अपने आप पाया जाता है, वो पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है वो ढूंढो, वो वर्ड ढूंढो। फिर इंक किधर लिखा है वो वर्ड ढूंढो। फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी है, वो वर्ड देखो किधर है, और किंग कौन से वर्ड में छुपा है वो वर्ड लिखो। अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? सो आप क्या करोगे आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे पूरा पैसेज, और पैसेज पढ़ने के बाद में ये तमाम चीजें क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि सर्च फॉर एन इंसेक्ट, एक ऐसा इंसेक्ट जो अपने घर में पाया जाता है ना। वो इंसेक्ट चाहे फ्लाई हो सकता है ना, चाहे बैड बग्स हो सकता है, चाहे आंट हो सकता है। तो वो इंसेक्ट ऐसा कहीं पर पैसेज में किसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढ के निकालने का है। अंडरस्टूड? एंड सेम इंक, इंक किधर लिखा हुआ है, इंक होता है ना जिससे अपन यूज करते, वो इंक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ड्स के अंदर छुपा हुआ है, वो वर्ड्स आपको ढूंढना है जिसमें इंक छुपा हुआ है। सेम पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी है कहीं ना कहीं, वो भी आपको ढूंढ के निकालना है कौन से वर्ड में पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। और एक ऐसा वर्ड है जिसमें किंग आया हुआ है, किंग, वो वर्ड्स भी आपको क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू हैव एंजॉयड।